Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 2 of Introduction to Advertising and Advertising Fundamentals. Topics to be covered in this session are what is advertising, roles and functions of advertising, the key players, types of advertising, what makes an ad effective, the evolution of advertising and the current advertising scene. So we'll start with advertising. The key points of this session are define advertising and its key components, discussing about the roles and functions of advertising within society and business. We'll study about that कि एडवर्टाइजिंग का क्या रोल रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा हमारी सोसाइटी में, हमारे बिजनेस में, और की प्लेयर्स क्या हैं विच and their roles in creating advertising, and we also study about different types of advertising, summarizing the characteristics of effective advertising and explain why it is always goal directed, and we'll also analyze the changes affecting the advertising industry. So starting with defining modern advertising, I would like to tell you a little bit about advertising. We have already discussed it about in the session 1 that advertising is a very powerful communication force. If we'll define it, we can say it's paid persuasive communication. ये एक ऐसा paid form of communication है जो persuade करता है. It uses non-personal mass media to reach broad audiences to connect an identified sponsor with a target audience. ये नॉन पर्सनल मास मीडिया यूज करता है ताकि ज़्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और टू कनेक्ट एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर विद अ टारगेट ऑडियंस. और एक स्पॉन्सर के साथ, एक मोटिव के साथ ये अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं. इसमें 5 बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे. पेड कम्युनिकेशन, स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाइड, ट्राइज टू परसुएड और इन्फ्लुएंस, reach a large audience, conveyed through impersonal mass media. So these are the few features of our modern advertising. आज आप देखते हैं टीवी पे या कहीं भी इंटरनेट पे, उनका अल्टीमेट मोटिव यही रहता है कि वो परसुएड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकें. एडवर्टाइजिंग को अगर हम डिफाइन कर दें, हम कह सकते हैं इट्स एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स and services by an identified sponsor. So we can say कि advertising जो है उसका एक identified sponsor रहेगा और इसका ultimate motive goods की, ideas की, services की promotion करना है, और ये एक paid form of non-personal presentation है. Advertising is controlled, identifiable information and persuasion by means of mass communication media. हम कोई इसमें mass communication media यूज़ करते हैं, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें. So प्रमोशन मैनेजमेंट, हुक्टन मिफलिन कंपनी 1998 में उन्होंने इसके बारे में डिफाइन किया एडवर्टाइजिंग को, दैट इट्स द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अ टारगेट ऑडियंस यूजुअली पेड for by the advertiser and delivered through mass media in order to reach the specific objectives of the sponsor. So they have defined it like this कि एक non-personal communication है जहाँ marketing related information जो है वो target audience तक पहुँचाई जाती है और usually pay करना होता है. It is paid for by the advertiser और delivered through mass media ताकि ज़्यादा से ज़्यादा larger audience तक पहुँच सके और उनका in order to reach the specific objectives of the sponsor. So in this way we define advertising. About the different basic components, I would like to tell you that it's a paid form. Paid form की बात करें तो favorable publicity projects, products, services or ideas in any media because it is considered informative and useful for the audience. For publicity, no payment is made by benefited organizations. The paid aspect of the definition reflects the fact that the space or time for an advertising message generally must be bought. There are occasional exceptions to this, and that is why one of the
above mentioned definitions, the words usually paid for. That is why we have used the word in the definition that it is a paid form of communication, क्योंकि इसमें आपको पे करना होगा, जैसे कि मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और मीडिया के जो भी हम अपने मीडिया में और जो भी देखते हैं, इंटरनेट हो गया या किसी भी तरीके की चीज़ें हो गई, तो voluntarily they donate space and time and also prepares the ads for certain public service announcements and social causes also, and you advertiser has to pay for that. At a somewhat different level, some magazines and newspapers include ads for their own newspapers and magazines. Many TV channels show ads to promote their own image among audiences and increase the popularity of their programs. An ad by a Hindi daily, Dainik Bhaskar, appeared in its own issue, which showed its own circulation figures and compared them against another Hindi daily, that's Rajasthan Patrika. So these kind of ads were not paid for its space in creative work, in the sense that the word paid is usually used. तो अगर अपने ही लिए उन्होंने ad किया है, वहाँ पर हम इसे paid form नहीं कह सकते. There is no denying the fact that there would be cost involved in its production. Obviously production करी है तो उसकी cost तो लगेगी ही, which must have been suitably recorded in the account books. The fact is that these advertising situations show that all ads might not be paid for, though they require total effort by men and women who create it. So these kind of ads are, we can take them in the paid form because in production की cost लग जाने के बाद उसको हम एक paid form of communication कहते हैं. अगर अपने लिए ही वो ads दे रहे हैं तो automatically वो एक नॉन पेड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि अपने ही रैपो को, अपने ही प्रोग्राम्स को पॉपुलराइज करने के लिए कर रहे हैं. बट जनरली जब किसी और के लिए इनको स्पेस एंड टाइम क्रिएट करना है तो वहां पर ये उन एडवर्टाइजर से अमाउंट कलेक्ट करते हैं. दैट इज इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाइड, यानी कि इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहेगा. These words actually clarify the difference between advertising and propaganda. यही वर्ड एक्चुअली जो स्पॉन्सर है यहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेंडा के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन क्रिएट करेगा. Just like advertising, propaganda attempts to present certain opinions and ideas which may influence the attitudes and actions. However, the source of propaganda mostly remain unknown and hence its authenticity is often doubtful. यहीं पर एक फर्क आ जाता है दोनों में ही, एडवर्टाइजिंग और प्रोपेगेंडा में. दोनों ही अपने ओपिनियंस और आइडियाज प्रेजेंट करते हैं जिनसे कि वो लोगों के एटीट्यूड्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक हम डिफरेंस जो देख सकते हैं दोनों के बीच में यही है कि सोर्स ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो मोस्टली अननोन रहता है, वहीं और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत डाउटफुल हो जाती है क्योंकि हम उसके स्पॉन्सर के बारे में या उसके जो सोर्स है उसके बारे में नहीं जानते हैं. पीपल इन जनरल डू नॉट नो हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ दीज आइडियाज एंड ओपिनियंस. वहीं अगर हम एडवर्टाइजिंग का केस लें तो स्पॉन्सर जो है वो आइडियाज या ओपिनियंस का हमेशा नोन होता है और हमें पता होता है कि हु इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर दैट पर्टिकुलर एड. Next basic component in modern advertising is tries to persuade or influence. That is its ultimate motive automatically, क्योंकि यहाँ पर इनका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो यही रहता है कि वो प्रमोशन कर सके और लार्जर ऑडियंस तक पहुँच सकें और परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना लोगों के एटीट्यूड्स को, एक्शंस को, सो दैट दे आर कीन टू बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज. यही यहाँ पर अल्टीमेट जो मोटिव रहता है या ऑब्जेक्टिव रहता है वो परसुएशन रहता है. So the major objective of advertising inherent in the presentation and promotion of ideas, goods or services is to achieve predetermined objectives through persuasive communication, precipitating the change or reinforcement of desired attitude or behavior. That means यहाँ पर एक predetermined objective रहता है, that is to persuade the target audience, और इसके लिए उनके एटीट्यूड, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है और रीइंफोर्स किया जाता है जो डिजायर्ड एटीट्यूड है या बिहेवियर, सो दैट दे बिकम कीन और डिजायरेबल टू बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज. रीच अ लार्जर ऑडियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचेंगे और
मास मीडिया कम्युनिकेशन है ये, इसलिए यहाँ पर इनका इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर अप करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑडियंस कैन बेस्ट बी रीच्ड ओनली एंड ओनली बाय मास मीडियाज। हम अगर लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें मास मीडिया, अगर हम एवरी सिंगल पर्सन को जाके इस तरीके से ऐड कर पाएँ तो नहीं हो पाएगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। सो यहाँ पर हमें मास कम्युनिकेशन मीडिया का हेल्प लेना होगा। ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑडियंस कैन बेस्ट बी रीच्ड by mass media such as newspapers, magazines, television, radio and outdoor displays. And this is what separates advertising from personal selling. Multiple messages are delivered to thousands of people simultaneously, ताकि एक ही बार में मल्टीपल मैसेज जो है वो डिलीवर हो सके टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर। सो यहाँ पर इनका दिस इज व्हाट सेपरेट एडवर्टाइजिंग फ्रॉम पर्सनल सेलिंग। यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हम देख सकते हैं। दोनों में ही अल्टीमेट मोटिव उनका भी परसुएशन रहता है, इन्फ्लुएंस करना रहता है टारगेट ऑडियंस का एटीट्यूड एंड एक्शन, बट और यहाँ पर भी सेम मोटिव है, बट द सिंगल डिफरेंस दैट इज बिटवीन देम इज mass media communication is used by advertisements, और advertising के लिए इनफैक्ट हम mass media का यूज करते हैं, whereas for personal selling we prefer door to door selling। तो वहाँ पर हम जाकर पर्सनली सेल करते हैं। यहाँ पर एक डिमार्केशन हम देख सकते हैं दोनों के बीच में। कन्वे थ्रू इम्पर्सनल मास मीडिया, और इम्पर्सनल मास मीडिया के थ्रू हम इसे सेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास मीडिया में हमने देखा ब्रॉड ग्रुप तक ये पहुंच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना उसके लिए हमें मास मीडिया की ज़रूरत रहेगी। तो दीज आर द फ्यू बेसिक components of modern advertising. Now about the key concepts of advertising. सबसे पहले तो मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी, ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी एक्चुअली इन्वॉल्व करते हैं। लॉजिक एंड प्लानिंग बिहाइंड दैट। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअली लॉजिक क्या है इस एड के पीछे, हम क्यों बना रहे हैं, उसका अल्टीमेट हमारा प्लान करते हैं उसके लिए। देन एडवर्टाइजर्स डेवलप एड्स टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। इस तरीके से एडवर्टाइजर उस एड को डेवलप करेंगे ताकि जो एक्चुअली उनकी टारगेट ऑडियंस है और वो उनसे सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं या परसुएड करना चाहते हैं या डिज़ायर क्रिएट करना चाहते हैं, एक इनोवेटिव टेक्निक दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतना स्पेशल है या इतना इनोवेटिव है जो बाकी किसी भी प्रोडक्ट में इस तरीके की क्वालिटीज़ नहीं है। तो मे बी इस तरीके की कुछ एग्जाम्पल्स देकर वो या इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करके एडवर्टाइज़र अपनी एड्स को डेवलप करते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। एडवर्टाइजर्स डायरेक्ट एड्स टू आइडेंटिफाइड ऑडियंस, और पहले ही टारगेट ऑडियंस का पता लगाया जा सकता है क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत ही हाई लेवल है और जहाँ पर सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स ही उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लग्जूरियस कार्स हैं या आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं जो बहुत लग्जरीज में होती हैं, फुल ऑफ कंफर्ट्स एंड ऑल विच आर एट वेरी हाई लेवल वी कैन से। तो उनके लिए आइडेंटिफाइड ऑडियंस जो है वो एरिस्टोक्रेट्स रहेगी। वहीं अगर जो सिंपल थिंग्स हैं और वी कैन से जिनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बहुत ही इस तरीके की अफोर्डेबल थिंग्स, उसके लिए वो ऑब्वियसली टारगेट करेंगे अपनी मिडिल क्लास को या फिर बुर्जुआजी सोसाइटी को, उनको टारगेट करेंगे ताकि आइडेंटिफाइड ऑडियंस जो है उनको पहचानना ज़रूरी है ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके और उनका लाइफस्टाइल या उनकी जो भी चीज़ें हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको समझा जा सके ताकि आइडेंटिफाइड ऑडियंस को उसी ऑब्जेक्टिव से पहुंचा जा सके। क्योंकि अगर हम उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमें उनके लाइफस्टाइल और उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, अपनी ऑडियंस के बारे में, उनकी डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, उनके जेंडर एंड ऑल सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज लेना ज़रूरी है, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। If we want to target our particular audience, we need to know about them so that we can reach them through the mind और उनके mind पे influence किया जा सके। इसके लिए identified audience को पहचानना बहुत ज़रूरी है। Advertisers create messages that speak to the audience concerns। जैसा कि मैंने आपको बताया कि audience advertisers जो है वो ऑडियंस के कंसर्न को लेकर बात करेगी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपनी ऑडियंस के
वेरियस कंडीशंस जैसे कि डेमोग्राफिक कंडीशंस, उनकी लाइफस्टाइल और किस तरीके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, किस तरीके का अकेडमिक क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है इफ़ वी वांट टू स्पीक टू द ऑडियंस कंसर्न। तो वहाँ पर उनके माइंड तक पहुँचने के लिए, उनके माइंड को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें अपने ऑडियंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजर रन एड्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, और एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एड्स इतनी इफेक्टिवली देते हैं ताकि स्ट्रेट वे में उसको डिज़ायर क्रिएट कर सकें, यानी कि पहले अटेंशन गेन करते हैं। शायद आपने एडा फॉर्मेट के बारे में सुना हो, एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन। पहले अटेंशन गेन करेंगे थ्रू सम इनोवेटिव टेक्निक, देन दे विल इंटरेस्ट जगाएंगे, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, देन वो चाहेंगे कि अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट कैप्चर कर सकें, देन दे विल इंड्यूस डिज़ायर। अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स या ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन दिखाएंगे जो बाकी किसी प्रोडक्ट में नहीं है। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करते हैं ताकि अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकें इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। सो दिस इज इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज जहां मार्केटर जो है डेवलप करता है न्यू प्रोडक्ट, एंड देयर इज नो अश्योरेंस दैट कंज्यूमर्स विल परसीव अ नीड फॉर इट और नॉट। एक्चुअली जब इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है तो ये पता नहीं होता कि इस तरीके का प्रोडक्ट हमको यूज़ करेंगे, या अश्योरेंस नहीं होता कि वो उसे किस तरीके से परसीव करेंगे, will they have the need for this particular product or not. Unless consumers perceive a need for the product, it will not sell. Obviously अगर consumers को इसकी need ही नहीं है तो फिर ये product तो sell ही नहीं हो पाएगा. The job of advertising is to introduce the idea that the product is better able to meet consumer needs than the existing solutions. So this is actually the strategy, this is actually the innovative technique. यहाँ पर हमें समझ आता है कि इसी तरीके की वो नीड क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ताकि इससे ज़्यादा बेटर जो है प्रोडक्ट आपको शायद कहीं नहीं मिल पाएगा आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए। सो जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग हियर इज टू इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट द प्रोडक्ट इज बेटर एबल टू मीट कंज्यूमर नीड्स दैन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस. It must effectively communicate that the new product has overcome the limitations of earlier alternatives that consumers have been tolerating since a long time. यानी कि जो भी पिछले प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी बहुत लंबे समय से उन चीज़ों को लेकर, वो इस प्रोडक्ट में आपको नहीं मिल पाएगी. यहाँ पर इनको इफेक्टिवली ये मैसेज कम्युनिकेट करना होता है कि नया प्रोडक्ट जो है उन सब उसमें कोई भी इस तरीके की लिमिटेशंस नहीं है और वहाँ पे ओवरकम हो चुके हैं जो पहले के लिमिटेशंस थे और कंज्यूमर्स उनको बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहे थे. द रोल ऑफ एड मैसेजेस इन दिस स्टेज इज टू furnish product knowledge, change existing habits, develop new usage, cultivate new standards of living, and implant a new way to look at existing approaches of problem solutions. So इस तरीके से वो strategies use करते हैं. Next is creative idea. अब यहाँ पर ये creative idea use करेंगे, यानी कि जो मैंने भी आपको बताया वो central idea, ऐसा कुछ आइडिया प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि ये कंज्यूमर का अटेंशन गेन किया जा सके. जैसे मैंने एडा फॉर्मेट में आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप इज टेक द अटेंशन, और वो हम कैसे ले सकते हैं कि ये दिखाकर, ये मैसेज कन्वे करके दैट हमारा जो प्रोडक्ट है या ये जो प्रोडक्ट न्यू आया है मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये इट इज़ मच बेटर टू मीट द कंज्यूमर नीड्स. जो भी अब तक एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उनसे कई ज़्यादा बेटर है. और एक मैसेज जो है वो ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो नया प्रोडक्ट है उसमें वो सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने की पावर है जो कि पहले के ऑल्टरनेटिव्स थे और कंज्यूमर्स उनको बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहे थे. तो यहीं से इनका क्रिएटिव आइडिया शुरू होता है ताकि उनका अटेंशन कैप्चर किया जा सके एंड देन वी गो फॉर इंटरेस्ट उनका जगाना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बाय शोइंग देम दीज क्वालिटीज़ की बहुत ही इनोवेटिव है और इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है. देन उसके बाद उनमें डिज़ायर इंड्यूस करना है हमने. क्रिएटिविटी ड्राइव्स द एंटायर फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग में तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप समझ पाए होंगे अब तक कि एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर नहीं है इस तरीके की इनोवेटिव आपको दिखाने की तो शायद आप कंपेटिटिव स्टेज पे जाकर फिर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मार्केट में बहुत कंपटीशन है.
इस तरीके के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके सामने आप अपने आप को कैसे बेटर प्रूव कर पाएंगे, यही आपकी क्रिएटिविटी ड्रिवन अप होगी। नाउ द एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट, अब आपको एग्जीक्यूट करना है, आपका जो आइडिया है उसे एग्जीक्यूट करना है। इफेक्टिव एज adhere to the highest production values in the industry। इफेक्टिव एड्स वही हैं जो हाईएस्ट प्रोडक्शन वैल्यू नहीं करते हैं, adhere करते हैं। क्लाइंट्स डिमांड द बेस्ट प्रोडक्शन द बजट अलाउज। क्लाइंट्स हमेशा वही डिमांड करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्शन भी मिले और बजट भी उनका अलाउ करे। सो यहाँ पर आपको उनका एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनके प्रोडक्शन भी बेस्ट रहे और बजट में भी आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब कॉम्पिटिटिव जब स्टेज आ जाता है तो कंज्यूमर्स हैव एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिशन हैज मूव्ड इन द मार्केट प्लेस सूनर दैन द लेटर। द कंज्यूमर फेसेस द क्वेश्चन विच ब्रांड शुड आई बाय। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन कि आप बेस्ट नहीं देंगे अगर सिर्फ हमेशा बजट का ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज होती हैं वो सोचती हैं कि बाय टू वेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। ये तो एक वेस्टेज है, बट ऐसा ही एक केस एडिडास के साथ हुआ था अराउंड 3 डेकेड्स बैक। उन्होंने भी अपनी एडवर्टाइजिंग को स्टॉप कर दिया था, लेकिन उसका इफेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उन्होंने ये देखा कि उनका प्रोडक्ट जो सेलिंग लेवल है या जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत नीचे जा रहा है, उनका ग्रोथ। तो इसीलिए उन्होंने फिर से अपना ओवरकम करने के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम को दोबारा से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया। तो एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग है, जिससे कि आप अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि शायद अगर आप उनके माइंड पे नहीं बार बार रिमाइंड करते हैं तो आई थिंक फिर वो आपको इतने सारे प्रोडक्ट होने की वजह से कॉम्पिटिटिव स्टेज पे वहाँ पर आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रहेगा, शायद वो भूल ही जाएं तब तक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके माइंड पे रहें। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप उनका माइंड जो है वो उस पर इन्फ्लुएंस बनाए रखें। सो कंज्यूमर्स हैव एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट एंड द कॉम्पिटिशन हैज मूव्ड इन द मार्केट प्लेस सूनर दैन द लेटर। कंज्यूमर फेसेस द क्वेश्चन विच ब्रांड शुड आई बाय। अब यहाँ पर उनके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। जनरली जो अर्ली स्टेजेस हैं इस कंपटीशन की, कंबाइंड टोटल इफेक्ट ऑफ कंपिटिटर्स क्रिएट्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी। और की ऑब्जेक्टिव जो है एडवर्टाइजिंग इज टू क्लियरली एंड कन्विंसिंगली differentiate the company's brand and effectively communicate its position। तो यहाँ पर उनका अल्टीमेट मोटिव यही रहता है कि अपने ब्रांड को एक अलग से ही इस्टेब्लिश करें और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें अपनी पोजीशन के बारे में। तो हमें एग्जीक्यूशन स्टेज पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ अबाउट मीडिया, यहाँ पर आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उनको रिमाइंडर दे सकें। दिस स्टेज इज रिमाइंडर स्टेज, यहाँ पे आप मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल्स दैट रीच अ ब्रॉड ऑडियंस। आप जानते हैं मास मीडिया इज मास कम्युनिकेशन मीडिया में न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन और इस तरीके के इंटरनेट, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आ गई हैं जहाँ पर आप मास मीडिया को थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एट वन गो यू कैन इन्फ्लुएंस देम और वहाँ पर उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेज इज how to deliver the message is just as important coming up with the creative idea of the message। जितना आइडिया क्रिएटिव है उसको उतना ही डिलीवरी भी उसकी इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्हें बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका मैसेज अगर आइडिया जो है वो बहुत क्रिएटिव है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उस किस तरीके से डिलीवर करते हैं। तो व्हेन प्रोडक्ट्स रीच मेच्योरिटी इन देयर लाइफ साइकिल एंड आर वाइडली एक्सेप्टेड, they are in their reminder stage and marketers may not feel much need for competitive advertising as consumers already know about all the product। some consumers like the product, some others don't like it or maybe neutral। ऐसा भी होगा कि कई बार कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। however if marketers do not advertise, और अगर वो इफेक्टिव वे में इस तरीके से क्रिएटिव आइडिया के साथ अपने डिलीवरी मैसेज पे नहीं ध्यान देते और एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू फॉरगेट अबाउट इट। लोग भूल जाएंगे एंड स्विच इट टू अदर ऑल्टरनेटिव बीइंग एडवर्टाइज रेगुलरली। जो रेगुलर रहेगा ऑब्वियसली जो लोगों के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस बना रहेगा उस टाइम पे, और वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बेटर तो पब्लिसिटी कोई हो नहीं सकती। तो एक बार ही अगर किसी ने ये देखा कि ये प्रोडक्ट बेटर है तो
कई बार ऐसा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ, जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स में. कंज्यूमर्स आर लाइकली टू फॉरगेट अबाउट दोज प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज नहीं करते हैं रेगुलरली. दिस इज सफिशिएंट रीजन टू स्विच टू रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग एंड कीप द ब्रांड इन फ्रंट ऑफ consumers for top of mind recall through the means of media. And the one thing which is required here is कि किस तरीके से आप वो मैसेज उनको डिलीवर करते हैं ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके उनको. एडवर्टाइजिंग अलोन ऑलमोस्ट नेवर सेल्स प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज. इट हेल्प्स टू सेल थ्रू परसुएशन. एक्चुअली एडवर्टाइजिंग खुद नहीं सेल करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज या आइडियाज को. इट ओनली हेल्प्स टू सेल थ्रू परसुएशन. परसुएट करना ही इनका अल्टीमेट मोटिव है. तो अगर मैसेज की डिलीवरी प्रॉपर नहीं होती तो आई थिंक द कम्युनिकेशन फेल्स है और जो एडवर्टाइजिंग का अल्टीमेट मोटिव है वो फेल हो जाएगा. फॉर एनी रीजन इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, द ग्रेटेस्ट advertisement cannot sell this product. If the consumers perceive that the product is overpriced or does not meet their requirements, then advertising won't be able to sell such a product. अगर इस तरीके के आपका मैसेज में डिलीवरी नहीं है प्रॉपर और उनको ये लगा कि शायद ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर रहा, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए सही मैसेज ही नहीं दिया और उनको ये नीड ही नहीं दिखाई, कि नीड ही क्रिएट नहीं करी, तो फिर आई थिंक दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट और ये परसीव कर लेंगे कि ओवर प्राइस है या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट करता. तो एडवर्टाइजिंग वोंट बी एबल टू सेल सच अ प्रोडक्ट. नो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग विल परसुएट कंज्यूमर्स टू बाय अ बैड प्रोडक्ट और सेकेंड टाइम, क्योंकि सेकेंड टाइम इसमें चांस नहीं मिल पाएगा आपको अगर एक बार बैड प्रोडक्ट की इमेज जो है वो डेवलप हो गई. एडवर्टाइजिंग कैनॉट सेल एनीथिंग दैट इज नॉट परसीव्ड बाय द ऑडियंस एज नीडेड, wanted or desired. This is the ultimate thing we have to remember कि advertising जो है वो product नहीं sell कर पाती which is not perceived by the audience as needed, wanted or desired. So that's all for this session about the key concept. We will study about lot of things about the advertising, like its different types and the different key roles of the different और क्या क्या चीज़ों का impact पड़ता है हमारी advertising में. We will study about all those things but in the next part of this session. That's all for this session by now. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.